Very good. Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So class, today we all are going to continue our chapter number 6 of your book Indian Constitution at Work. The name of your chapter is in Judiciary. In our previous class, we discussed about the jurisdiction of the Supreme Court. Under that, we discussed the jurisdiction of Supreme Court elaborately. 5 of the jurisdictions are there: original jurisdiction, writ jurisdiction, appellate. Under appellate, Supreme Court has special powers, and advisory jurisdiction. Okay. So now our today's topic is judicial activism. Activism means how judiciary started working actively, and what are the situations which makes judiciary to work actively. Okay, so judicial activism, these two, judicial activism and public interest litigation, it is litigation of activism. Public interest litigation, PIL, सबने सुना ही होगा ना PIL. PIL, जब आप पब्लिक कोई पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी केस जब फाइल करवाता है, रजिस्टर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? PIL बोलते हैं, अपील करते हैं. So judicial activism, public interest litigation, these two things have revolutionized the functioning of judiciary and made it more people friendly. Revolution क्या होता है? क्रांति लाना, सबसे सडन चेंजेस लेके आना. जुडिशियल एक्टिविज्म 1970s का टाइम था जब जुडिशियल एक्टिविज्म और PIL जो है काफी देखने को मिला था. वो पीरियड था, वो एक रेवोल्यूशनरी पीरियड था. उस टाइम पे जुडिशरी में काफी जो है चेंजेस आए थे, जिससे कि जुडिशरी जो है लोगों से ज्यादा जो है इंटरेक्ट कर पा रही थी और ज्यादा पीपल फ्रेंडली हो चुकी थी. एंड ये दो चीज जो है जुडिशियल एक्टिविज्म और PIL, ये इसने क्या किया था, लोगों को ज्यादा कनेक्ट करवाया था जुडिशरी से. नेक्स्ट इज public interest litigation or social action litigation. What is the another name for public interest litigation? Social action litigation. Social action litigation क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूज मत होना. PIL and social action litigation both are the same thing. It means when you register a case, when you appeal to the court for the interest of public, for the public interest, that term is known as public interest litigation. Litigation is filing a case. ठीक है, public interest and litigation या social action term से समझ आ रहा होगा क्या है. ठीक है. So now in normal course of law, an individual can approach the courts only if he or she has been personally aggrieved. Means 1970s से पहले की बात बताती हूँ, mid 70s से पहले की बात. कोई भी पर्सन जुडिशरी कब जाता था या जब कोर्ट कब जाता था, he or she can approach to the court only if he or she got injured या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी, वायलेशन होता था, अग्रीव्ड होते थे, कोई डिस्ट्रक्शन होता था, तभी वो कोर्ट्स जाते थे. So this concept underwent a change around 1979, but 1979 में क्या हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट था कि अगर सपोज तनीषा को कोई इंजरी हुई है तो तनीषा ही जा सकती थी. मेरे को अगर प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है कि इसको तो जस्टिस नहीं मिल रहा है, इसे कोर्ट में जाना चाहिए, बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी. पर आज के टाइम पे क्या है, 1979 में ये जो प्रोसेस था चेंज हो चुका था. अब तनीषा को कोई इंजरी हुई है या कुछ भी हुआ है, शी इज नॉट मूविंग टू द कोर्ट, या फिर कोई भी रीजन से XYZ कोई भी रीजन है ये कोर्ट नहीं जा रही है, बट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट मैं क्या कर सकती हूँ, एक स्टेप ले सकती हूँ और मैं कोर्ट तक जा सकती हूँ कि इनका जो केस है वो सुना जाए, इनको भी जस्टिस मिलना चाहिए. नॉर्मली ये जो बात है, ये जो जस्टिस वाली बात है पुअर्स के लिए, पुअर्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, बहुत ज्यादा इसमें पेपर वर्क चाहिए, तो इलिटरेसी होने की वजह से भी क्या है वो लोग नहीं जाते थे. ठीक है, तो ये 1979 में ये जो कॉन्सेप्ट था चेंज हुआ.
In 1979, the court set the trend when it decided to hear a case where the case was filed not by the aggrieved persons but by others on their behalf. I already explained you this कि अगर मैं तनिषा के behalf पे अगर केस फाइल करना चाहती हूँ तो एटलीस्ट मैं कोर्ट से ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो इस केस को हियर करे, एटलीस्ट सुने तो सही कि केस है क्या। ठीक है, ये 1979 में मतलब काफी ट्रेंड में आ चुका था, काफी मतलब ऐसे पीआईएल्स काफी फाइल हुए थे। सो इससे इसके कुछ एडवांटेजेस क्या थे? दिस ओपन द गेट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ केसेस वेयर पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजंस एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन sought judicial intervention for protection of existing rights, betterment of life conditions of the poor, protection of the environment, and many other issues in the interest of the public. Okay, अब now अगर मुझे लगता है कि नहीं जो हिमालयास है, ठीक है, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश है, वहाँ के ट्रीज कट हो रहे हैं, वहाँ की जो हिल्स को क्या कर रहे हैं, वो कट कर रहे हैं या वो बना रहे हैं, मेरे को लग रहा है मैं बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट स्पिरिटेड पर्सन हूँ, मुझे लग रहा है वो सही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैं केस फाइल नहीं कर सकती हूँ, मैं केस फाइल कर सकती हूँ। नहीं तो पहले के केस में क्या होता था, जो वहाँ के सिटीजन्स थे वो ही कर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब पुअर्स की कंडीशंस को बेटर करने के लिए, आपकी एग्जिस्टिंग राइट्स को क्या करने के लिए, एग्जिस्टिंग राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या और कोई भी इश्यूज हो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब जस्टिस ज्यादा आपको मिलेगा, आपके पास कोर्ट का एक्सेस है। गॉट इट? So PIL has become the most important vehicle of judicial activism. अब judicial activism, judiciary अब actively क्या कर रही है, participate कर रही है, किस वजह से participate कर पा रही है, actively work कर पा रही है, due to PIL. PIL एक वे है, एक vehicle है जिसके थ्रू judiciary जो है actively work करने लग गई है। ठीक है, अगर हमें suppose मुझे यहाँ से बीकानेर रेलवे स्टेशन जाना है, तो मुझे एक व्हीकल की, एक पाथ की जरूरत तो पड़ेगी। सपोज यहाँ से मेरे पास सपोज कार है, बट यहाँ से पूरा जो बीकानेर रेलवे स्टेशन तक का एरिया पूरा डेजर्ट एरिया है जहाँ पे कार चल ही नहीं सकती, वो उस कार का कोई मतलब है, कोई वो है। सपोज यहाँ से रेलवे स्टेशन तक रोड बनी हुई है, बट मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है। ठीक है, ये एक तरीका है कि आप लॉन्ग पाथ चल के फुट बाय यस ऑन फुट आप क्रॉस कर सकते हो। तो सेम यही कंडीशन है कि पुअर्स को इतना चल के जाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे उनको, पुअर्स को। तो अब पीआईएल जो है एक व्हीकल बन गया है जिसके थ्रू वो अपना क्या कर रहे हैं, एक पाथ क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, जस्टिस के लिए डिमांड कर सकते हैं। गॉट इट? क्लियर है यहाँ तक? सो सम अर्ली पीआईएल्स, कुछ एग्जांपल्स है पीआईएल्स के आपके। एक पीआईएल है आपका हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार केस। ठीक है, एक ब्लू बॉक्स या पिंक बॉक्स में आपके बुक में होगा। इन 1979 न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड रिपोर्ट्स 5 about under trials. Now there is a term called under trials. There were many prisoners in Bihar who had spent long years in jail, longer than what they would have spent if they had been punished for the offences for which they were arrested. This report prompted an advocate to file a petition. The Supreme Court heard this case. It became famous as one of the early public interest litigations. This was the Husain Ara Khatun versus Bihar case. 1979 में बहुत सारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में जो है ऐसी खबरें जो है पब्लिश होती रहती थी कि अंडर ट्रायल्स, मतलब कि बहुत सारे केसेस जो है सुने ही नहीं जा रहे, उनको ट्रायल में डाला हुआ है बट सुना ही नहीं जा रहा है। ठीक है, उनको कस्टडी, उनको जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते हैं उसके बाद 24 आवर्स में जो है केस या फाइल करते हैं, नींद आ रही है, केस फाइल करते हैं और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। ठीक है, बट उस केस को सुना भी तो जाता है ना कि अच्छा ये केस बन रहा है, तो उसको सुनना भी तो पड़ेगा कि क्या है। कोई जरूरी थोड़ा है वो पर्सन जिसे अरेस्ट किया है वो गिल्ट
गिल्टी हो ही हो, अक्यूज्ड पर्सन है वो अभी गिल्टी नहीं है, ठीक है। तो अंडर ट्रायल्स के बहुत सारे ऐसे पब्लिश हो रहे थे, बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही थी कि उनका जो है वहां पे सुनवाई हो ही नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोर्ट्स जो है एक्टिवली काम नहीं कर रही थी। तो ऐसे एक एडवोकेट थी, उनको जो है ये चीज सामने आई, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही लाइक गलत हो रहा है, ठीक है, लोगों का ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रहा है। तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी, एक पिटीशन दर्ज की, ठीक है, फाइल की कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस को सुने। एंड ये पिटीशन जो है क्या हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली थी, और दिस इज वन ऑफ द अर्ली पीआईएल्स जो काफी फेमस भी हुआ था। और इस केस को हम हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार केस कहते हैं। क्या हुआ था इसमें, वैसे जो जज थी, ठीक है, जो एडवोकेट थी इस केस की, वो थी पुष्पा कपिला हिंगोरानी, जो मदर ऑफ पीआईएल भी कहलाती है। पुष्पा कपिला हिंगोरानी, लिख लीजिए, आपके बुक में मेंशन नहीं है। हु इज नोन एज द मदर ऑफ पीआईएल? पुष्पा कपिला हिंगोरानी, शी इज नोन एज द मदर ऑफ पीआईएल, ठीक है। इन्होंने ये केस देखा था, उन्होंने देखा था कि बिहार की वुमेन्स एक जेल में बहुत सारी वुमेन जो है उनको अरेस्ट किया गया था, और उन्होंने जितना उनको मिला था ना पनिशमेंट, उससे ज्यादा, कई ज्यादा टाइम जो है उस ऑफेंस के लिए वो जेल में बिता चुकी थी। तो उनका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, और ह्यूमन राइट वायलेशन होने के वजह से उन्होंने बोला कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को केस जो है सुनना चाहिए। तो उन वुमेन को कोई मतलब नहीं था कि वो जेल में है नहीं है, उनको अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं था। बट फिर ये जो एडवोकेट थी पुष्पा कपिला हिंगोरानी, उन्होंने ये केस फाइल किया, और उनको जो है एक लंबी लड़ाई लड़ी इन्होंने, और जीत गए ये केस, ठीक है। Next is in 1980, a prison inmate of the Tihar jail managed to send a scribbled piece of paper to Justice Krishna Iyer of the Supreme Court, narrating physical torture of the prisoners. The judge got it converted into a petition. Though later on the court abandoned the practice of considering letters, this case, known as Sunil Batra versus Delhi administration, also became one of the pioneers of the पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 1980 में तिहाड़ जेल में जो है एक तिहाड़ जेल से एक किसी पर्सन ने, अननोन है, एनोनिमस लेटर आया था। किसके पास आया था? जस्टिस कृष्णा अय्यर के पास आया था। ऑब्वियसली बहुत फटी पुरानी, मतलब बहुत ही गंदी हालत में था वो लेटर, बट उस लेटर में ये मेंशन किया हुआ था कि जो यहाँ के जो जितने भी प्रिजनर्स है ना, उनके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज्यादा फिजिकल टॉर्चर किया जाता है, आपको देखना चाहिए। ऑब्वियसली आप ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है अगेन यहाँ पे, ठीक है, पनिशमेंट मिली हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है आप किसी भी पर्सन के साथ जैसा चाहो वैसा ट्रीट कर सकते हो। तो उनके साथ फिजिकल टॉर्चर हुआ है यहाँ पे। और जो कृष्णा अय्यर है, उन्होंने इस लेटर को एज अ जो आप मान लीजिए कि पिटीशन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो लेटर वाला जो ये चीज था कि लेटर्स के थ्रू पिटीशन फाइल की जा रही है, उसको बंद कर दिया गया। बट ये भी बहुत फेमस केस हुआ, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का वन ऑफ द लाइक इम्पोर्टेंट और पायनियर केस बना, इम्पोर्टेंट फेमस केस हुआ। और ये केस किसके बीच में था? सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 1980 का केस है। तो दीज आर लाइक सम एग्जांपल्स ऑफ अर्ली पीआईएल्स, ठीक है, 1979, 1980. So the term judicial activism became the more popular description of the role of the judiciary. पीआईएल आपको बोल चुकी है, एक व्हीकल है। जुडिशरी जो है अब 1980s लेट 1970s और अर्ली 1980s से काफी एक्टिवली जो है वर्क करने लग गई थी, ठीक है। So through the PIL, the court has expanded the idea of rights, clean air, unpolluted water, decent living, etc. are rights for the entire society. Therefore, it was felt by the courts that individuals as part of the society must have the right to seek justice wherever such rights were violated. और पीआईएल्स के थ्रू ही आपको मिड डे मील स्कीम मिली बच्चों को,
ठीक है। PILs के थ्रू ही आपको क्लीन एयर, अनपॉल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग, एक स्टैंडर्डाइज्ड लिविंग, ठीक है, ये सारे राइट्स आपको PIL के थ्रू मिले। और इवन ये भी माना गया कि अगर आपकी इनमें से कोई भी राइट अगर वायलेट होते हैं, जैसे आपके घर पे बहुत गंदा पानी आ रहा है, ठीक है, आपका वन ऑफ द राइट वायलेट हो रहा है, आपको जो गवर्नमेंट है क्लीन वाटर जो है नहीं सप्लाई कर रही है, यू हैव दिस राइट कि आप जा सको कोर्ट में और आप बोलो कि मेरा राइट जो है यहाँ पे वायलेट हो रहा है एंड यू वांट जस्टिस फॉर इट। Okay, so secondly, through PIL and judicial activism of the post 1980 period, the judiciary has also shown readiness to take into consideration rights of those sections who have heard someone say that PIL means private interest litigation. ठीक है, अब कुछ PIL और judicial activism 1980 के पीरियड में क्या हुआ था कि ऐसे कुछ राइट्स थे, ठीक है, कुछ सोसाइटी के कुछ ऐसे सेक्शंस थे जो बोलते थे कि ये तो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ऐसा क्यों बोला जाता था? जुडिशरी कैन नॉट इजीली अप्रोच द कोर्ट्स, फॉर दिस पर्पस द जुडिशरी अलाउड, एक सेकेंड, अच्छा, those sections who cannot, या judiciary नहीं है, those sections who cannot easily approach to the courts, for this purpose the judiciary allowed public spirited citizens, social organizations and lawyers to file petition on behalf of the needy and the deprived. पहले जो केसेस होते थे आपके प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन की, बोल दिया गया कि ये तो वो तो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पहले जो केसेस थे, जिसको जो पर्सन अग्रीव्ड है, जो पर्सन हार्म हुआ है, जिसका राइट वायलेट हुआ है, वही जाके पिटीशन फाइल कर सकता था। बट अब जितने भी आपके पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, लॉयर्स, कोई भी क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है कोर्ट्स में, किसके बिहाफ में, जो भी नीडी है, जो भी डिप्राइव्ड है, जो उसका केस लड़ नहीं सकता है, या जो मतलब कि आगे नहीं आना चाहता, ठीक है, जिसको डर लग रहा है, जो व्हाटएवर द रीजन, जो भी नीडी और डिप्राइव है, उनकी हेल्प के लिए PIL आने लग गया। दैट मींस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लॉयर्स हैं, एटसेट्रा। सो नाउ जस्ट लुक एट दिस, दिस इज आपके बुक में तो मेंशन नहीं है, बट ये देखिए, ये प्रफुल्ल चंद नटवरलाल भगवती, ये दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रफुल्ल चंद नटवरलाल भगवती, आपके बुक में नहीं है, देखिए, it must be remembered that the problems of the poor are qualitatively different from those which have hitherto occupied the attention of the court, and they need a different kind of judicial approach. If we blindly follow the adversarial procedure in their case, they would never be able to enforce their fundamental rights. Justice Bhagwati, ठीक है, Justice Bhagwati काफी फेमस आपके ये वो रह चुके हैं जस्टिस, जो हाँ काफी फेमस रह चुके हैं। आपको मैंने बताया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उस टाइम पे भी जस्टिस भगवती ने काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। सो अब इन्होंने क्या किया कि हमें जो पुअर्स की प्रॉब्लम है उनको ध्यान में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, उनके लिए जो अप्रोच है, ठीक है, are qualitatively different from those which have hitherto. Hitherto means earlier occupied the attention of the court and they need, ठीक है, कि पहले तो जो क्या किया जाता था आपसे पहले कि जो के जिसको भी प्रॉब्लम्स होती थी वो कर लिया जाता था, या फिर जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, या जो आपके रिच पर्सन है वो इजीली क्या कर सकते हैं, कोर्ट्स से जस्टिस ले सकते हैं। बट जो पुअर्स है उनके लिए एक दूसरी अप्रोच हमें क्या करनी चाहिए, दूसरी अप्रोच लेके आनी चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच से, जुडिशियल अप्रोच से इनका क्या करना चाहिए, जस्टिस करना चाहिए। अगर हम जो प्रोसीजर है, जिस भी केस का प्रोसीजर है, अगर उसको ब्लाइंडली, ठीक है, कि उसी को फॉलो करते रहे तो वो कभी भी अपनी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स ही नहीं कर पाएंगे। तो ये इन्होंने PIL के फेवर में ये चीज बोली थी। क्या नाम था? जस्टिस भगवती, या फिर प्रफुल्ल चंद नटवरलाल भगवती, फुल नेम था उनका, ठीक है।
So judicial activism has had manifold impact on the political system. बहुत सारे ups and downs आए, manifold means many, various, ठीक है, बहुत ups and downs आए, बहुत सारे impacts लाए हमारे political system में भी. क्या क्या है? It has democratized the judicial system by giving not just to individuals but also groups access to the courts. अब इसने खाली जुडिशियल सिस्टम को ही डेमोक्रेटाइज नहीं किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाओ और फेस वॉश करके आओ. अच्छा, सो इसने खाली जुडिशरी सिस्टम को ही डेमोक्रेटाइज टर्म क्यों लिए, वो टर्म यूज क्यों किया है? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कोर्ट्स के पास अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म और थ्रू PIL. So this system, by not giving just to individuals but groups, ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअली PIL कर सकता है, फाइल कर सकता है, कोई ग्रुप भी कर सकता है, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजंस मिलके कर सकते हैं. OMG देखी थी, ओ माय गॉड, में एक केस पहले लेकर आए थे, क्या नाम है, प्रफुल्ल नहीं, नाम भूल गई मैं, जो जिसने अपना केस लड़ा था. फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे केसेस आ गए थे ना, प्रवेश लागत, हाँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत सारे केसेस आ गए थे. तो ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअली अपना केस लड़ सकता है या फिर इंडिविजुअल पर्सन के लिए आप ग्रुप्स में भी क्या कर सकते हो, कोर्ट्स के पास एक्सेस कर सकते हो. It has forced executive accountability, ठीक है. अब you can say कि अब ज्यादा से, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो deprived सेक्शन है, कोई भी सेक्शन है, it has access to everyone. It has forced executive accountability. Executives जो है, executive organ of the government, वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम करे, ज्यादा actively काम करे. It has also made an attempt to make the electoral system much more free and fair. Obviously, in a democracy, free and fair, एक election system का free and fair होना सबसे important है. तो जुडिशरी का जो ये अटेम्प्ट था, जुडिशियल एक्टिविज्म PIL जो था, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जिससे कि इलेक्टोरल सिस्टम भी हमारा और ज्यादा फ्री, फेयर, मतलब कि अनबायस्ड तरीके से जो है ये सिस्टम चलने लगा. कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू फाइल एफिडेविट्स बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस. अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, अब सिटीजंस ने डिमांड कर दी या जो भी है PIL के थ्रू, कोई भी अगर सपोज पहले मुझे लगता है कि नहीं यार कैंडिडेट्स को अपने असेट्स बताने चाहिए, लायबिलिटीज बताने चाहिए पब्लिक को, तो पहले इंडिविजुअल, ठीक है, ये केस नहीं लेके जा सकता था. अब क्या कर सकते हैं, अब आपको बोलेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बट वही अब एक ग्रुप जा सकता है, ग्रुप क्या कर सकता है, PIL फाइल कर सकता है और बोल सकता है कि कैंडिडेट्स को जो है एफिडेविट फाइल करना है, उनको अपनी असेट्स बतानी होगी पब्लिक को या जो भी है. तो इससे और ज्यादा जो है इलेक्शन सिस्टम भी फ्री और फेयर हो गया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है, थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म एंड PIL. कुछ नेगेटिव साइड्स भी है, ये तो एडवांटेजेस हो गए आपके. नेगेटिव साइड्स क्या है आपके? It has overburdened the courts. Obviously, अब पहले जो थे कि 10 केस आ रहे थे, अब उसकी जगह 100 केस आ रहे हैं, ठीक है, तो ओवरबर्डन कर चुके हैं, ओवरबर्डन हो चुका है केस. so many PILs और बहुत सारी PILs या बहुत सारे केसेस तो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर जजमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है. अब क्योंकि हमने जो लक्ष्मी वाला केस, लक्ष्मी क्या नाम था, लक्ष्मी था क्या, लक्ष्मण सुधा वाला केस जो था, जो हमने डिस्कस किया था, तो उसमें सुधा की फैमिली ने तो ओनली कब फाइल किया था रजिस्टर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया था, बट फिर हाई कोर्ट में जो उसके हस्बैंड और मदर इन लॉ ने किया था, ठीक है. बट उसके बाद सुधा की फैमिली ने कोई स्टेप नहीं लिया था. किसने स्टेप लिया था? वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एक